वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अज असी इत्थे जो कि तुहानूं आप जी नूं पहलां ही पता इत्थे कन्नै बाबा जी हुणी बाबा लखबीर सिंह जी, बाबा कन्नै जैमल सिंह जी दुधाधारी पिंड अलीपुर, बाबा बलबीर सिंह जी पिंगला आश्रम पटियाले वाले, बाबा सुखदेव सिंह जी अमन नगर वाले, जो कि इत्थे इन्हां ने पलवल बार्डर हरियाणा राजस्थान के कोल जिहड़ा पलवल बार्डर का इस किसान धरने दे विच इत्थे लंगर की सेवा लगी हुई है। पटियाला शहर के समूह कन्नै वासियों वालों ते महापुरुषों वालों इत्थे पटियाला कन्नै लंगर की सेवा चली हुई है। अज कन्नै बाबा जैमल सिंह जी दुधाधारी पिंड अलीपुर तो ते कन्नै बाबा बलबीर सिंह जी पिंगला आश्रम वाले ते कन्नै बाबा सुखदेव सिंह जी रमन नगर वाले भी कि भुख हड़ताल ते धरने ते बैठे ने। ते आओ इन्हां नाल अज गल करदे भी क्यों ये किस कार्यक्रम बैठे ने। बाबा जी वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बाबा जी तुसीं अज धरने ते बैठे हो, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਧਰਨ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ 11 ਮੁਖੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਲੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। 11 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 500-400 10,000 ਬੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਚੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੱਕੀ ਅੰਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਲੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਧਾਧਾਰੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਨ ਨਗਰ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਹੋਰ
ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਚੌਲ ਚੁਲ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 11 ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਧਰਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। हाँ जी भाई साहब। मेरा नाम SPS चौहान है। मैं हरियाणा से, जहाँ जो धरना स्थल है इधर से हूँ प्रॉपर। ओके। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं मोदी के बारे में? मैं मोदी नहीं, ये जो अंधी गूंगी और बहरी जो सरकार है, इस तक इस मंच के द्वारा सुनाना चाहता हूँ। आज पूरे भारतवर्ष के किसान जवान एक साथ होकर सड़कों पर आए हुए हैं। जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने किसान विरोधी, इनको वापस लेना होगा। और जो इन्होंने 15 तारीख दी है, अगर इस पर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद हम यहाँ से कपड़े उतार के मार्च करेंगे और 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराएंगे। बस मेरी यही संदेश है मोदी जी को, या तो मानो, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं, हमने लाल किले पे। और मैं एक्स आर्मी से जवान हूँ, और जो जवान का जुनून होता है ना, आज मैं किसान भाइयों के साथ, कोई बुंदेलखंड से हैं, सब बैठे हुए हैं। तो 26 जनवरी से पहले या तो हमारी मांगो, नहीं तो हम अपना तिरंगा झंडा फहरा के रहेंगे। अब किसान सरकार चलेगी ना, बीजेपी ना ये जो कांग्रेस, ऐसी सरकार अब भारतवर्ष में चलानी होगी किसान सरकार। जय हिंद, जय भारत। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। मैं अखिलेश रावत, बुंदेलखंड किसान यूनियन से राष्ट्रीय सचिव। हाँ बोला। मैं पिछले जो है 3 तारीख से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, 3 दिसंबर से। और मेरे साथ में जो है जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से कई बाटों में मेरे लगभग 60 साथी जो है शहीद हो चुकी हैं। लेकिन इस जो है गूंगी बहगी सरकार ने जो है उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी है, न उनके बारे में कुछ कहा है, न सोचा है। मैं ऐसे जो है भ्रष्ट देश के नेताओं को बिल्कुल यहाँ से जो है क्या कहूँ, जितनी बुरी सी बुरी बातें यहाँ मंच में नहीं कह सकता हूँ, मैं कहना चाहता था। उद्गार मेरे बहुत थे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि केवल ये अबानी अडानी केवल 2 गुर्गों के चक्कर में बिक चुकी है हमारी सरकार। और 2 सरकार में कौन है? उसमें मोदी मैन है, वो अमित शाह है। इन दोनों ने जो हमारे देश को गिरवी रख दिया है। हम लोग जो है लाखों की संख्या में यहाँ पड़े हुए हैं सड़कों पे। इनका कहना है, पहले तो हमारे साथियों को भड़काते रहे, एक पाकिस्तानी हैं, एक खालिस्तानी हैं, किसान में फूट डालते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो है मतभेद बनाए रहे हैं। लेकिन अब हम सब एक हो चुके हैं, एक होकर के हम लोग लड़ाई बहुत बड़ी लड़ने जा रहे हैं। और ये काले कानून बनाए हैं, लेकिन हम इनको वापस तो ले ही लेंगे, जैसे देंगे वैसे लेंगे। इस जंग को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोग अपने हौसले बुलंद किए रहेंगे। हौसले पस्त नहीं हमारे साथियों को होंगे। हमारे
पंजाब के साथी हैं, हरियाणा के साथी हैं, पटियाला के हमारे पटियाला साथी आए हैं। इन लोगों ने लंगर इतने लगा रखे हैं कि हम लोग जो है बरसों यहाँ खाते पीते रहेंगे, तो हमें कोई कमी नहीं है, हम लोग लड़ते रहेंगे। और जी कहते मौज मस्ती करने आए हैं यहाँ पे हम। अरे क्या, अगर जो है हम लोग ठीक है मौज मस्ती कर रहे हैं तो किन की खा रहे हैं? हम अपने भाइयों का खा रहे हैं। अपने किसान भाई हमारे पंजाब के, हरियाणा के, पटियाला के हमारे किसान साथी तो हैं जो हमारे लिए लंगर लगाए हैं। और कोई अधिकारी थोड़ी हमें IAS PCS खिला रहा है। हमारे खेत पर किसान और सीमा पर जवान हमारे भाई हैं, हमारी बेटे हैं, हमारे साथी हैं। ये हमेशा जो है हमारा साथ देंगे, ये सरकार का साथ नहीं देंगे। और जो हमारे अभी चौहान साहब ने कहा है, SP सिंह जी ने, फौजी भाई साहब ने कि हम लोग जो है किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं, न हटने वाले। यहाँ हम जब जाएंगे या तो काले कानून वापस होंगे या नहीं तो हम लोग जो है तिरंगे में लपट के जाएंगे। बाकी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਨਗਰ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧਾ ਧਰੀ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਨਗਰ ਨਾਨਕਸਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਅਲੀਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ 11 ਜਣੇ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਲੀਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਅਮਨਨਗਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ 5 ਪਸਲੀਆਂ ਕਰੈਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਹਿ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁਖਤ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਦੋਂ ਵਾਧਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ,
ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣੇ ਦਿਓ, ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, आपका नाम कहाँ से आप हो? मैं प्रेम नारायण वर्मा सीहोर ज़िला से मध्य प्रदेश से हूँ। हम यहाँ मतलब 9 तारीख से कल से आए हुए हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है, सरकार कह रही केवल दिल्ली के आसपास, दिल्ली की बॉर्डरों पर ही है, ये एकदम सरासर झूठ है। मैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले विकास खंड में यह आंदोलन चल रहा है। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, एक तो ट्रेनों में आवाजाही पर रोक लगी है, आम आदमी का आसानी से रिजर्वेशन भी नहीं होता, बड़ी तादाद में किसानियाँ आने को व्याकुल है लेकिन वो आ नहीं पा रहे साधन नहीं होने के कारण। दूसरा, जो सरकार ये कृषि कानून लेके आई तीनों, क्या किसानों ने कभी इसकी मांग की? जब मांग ही हमने नहीं की तो ज़बरदस्ती हम पर क्यों थोपा जा रहा? गुरुद्वारे की परंपरा है कि मत तंबाकू, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिया जा सकता, तो हमें गुरुद्वारे में बैठा के आप सर ये तब धूम्रपान करवाना क्यों चाहते हैं? सवाल ये उठता है। तो आपका जो कानून है ये हिंदुस्तान की जनता को तहस नहस करने वाला है। ये मजदूर और किसान का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, आवाम का एक आंदोलन बन चुका है और इसकी गूंज हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में गूंज रही है। एक तरह से हिंदुस्तान की जनता और हठ धर्मी सत्ता दोनों आमने सामने हैं। अब जब दोनों ही वर्ग आए हैं तैयारी से, दोनों ही वर्ग आमने सामने हुए हैं तैयारी से, वो आए हैं आर्यों के साथ, तो हम गर्दनों लिए साथ हैं, कुर्बानी देंगे, इस देश की ज़मीन को बचाएंगे, लेकिन इन काले कानूनों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमारा संदेश है। मोदी सरकार से चेतावनी है, जितनी जल्दी है तो ये कानून वापस ले ले, नहीं तो हिंदुस्तान की सल्तनत से उतर जा। हमें अडानी अंबानी का गुलाम नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की जनता के हितों की सोचने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। आप जो अभी शूट कर रहे थे, ये क्या था? गाना मोदी जी के ऊपर किया है, कैसे, ये क्या आपने किया है? ये गाना हमने जब दिल्ली हमारी 26 तारीख की परेड होगी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे हमारी दिल्ली परेड होगी, उसको लेकर, उस मैटर को लेकर हमने गाना शूट किया है आज। हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं यहीं पलवल से हूँ, मेरा गांव सियारौली है, मेरे कोला के पास, पलवल डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ओके, ये किसानों के हित में आप गाना लाकर आए हो? बिल्कुल, किसानों के हित में हमारे पहले भी गाने आए हुए हैं और किसानों के हित में आज भी हैं और आगे भी किसानों के हित में आते रहेंगे। ये चेतावनी मोदी जी को, जो हमें आतंकवाद बतलाते हैं, वो प्रधानमंत्री हमको आतंकवाद बतलाते हैं, उनको दिखाना है कि ये किसान आतंकवादी नहीं है। आज हमारा किसान सड़कों पर धक्के खा रहा है, एक किसान आतंकवादी नहीं है। इस गाने में ऐसे 2-4 लाइन उस प्रधानमंत्री के नाम संदेश दिया है और 26 जनवरी के लिए गाना शूट किया है। 26 जनवरी को हमारे ट्रैक्टरों में यही गाना बजता हुआ जाएगा और संदेश है मोदी जी को कि देख लेना 26 तारीख को कितनी बड़ी रैली होगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਫਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਵਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਰਤਨਜੀਤ ਸਰੋਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਗੁੱਡੇ ਦੁਖਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਗਰਾ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ ਪਲਵਲ ਤੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। पिछले 37 दिन से पलवल इस बॉर्डर पर मोर्चा किसानों का लगा हुआ है और 2 दिन पहले यहाँ पर पटियाला से लंगर की सेवा और किसानों की सेवा जिस प्रकार से शुरू हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है। 2 दिन पहले यहाँ से पलवल ज़िले से 7 तारीख को एक आह्वान था हमारे नेताओं का कि भाई हमें केएमपी और केजीपी के चारों तरफ एक टेलर के रूप में हमें ट्रैक्टर्स की रैली निकालनी है। तो उस रैली ने वो एक टेलर था हमारा, और जो बड़ी पूरी फिल्म हमें दिखानी है वो 26 जनवरी को दिखानी है। तो आज सारे देश का किसान इकट्ठा होकर के इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ खड़ा हो गया है। दिल्ली के 5 तरफ से दिल्ली को घेर रखा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि किसान कहीं से कमज़ोर नहीं है। जब किसान इतनी मजबूती से खड़ा है तो उनके पीछे बड़े बड़े दानी, आज मेरे सामने यहीं पर पटियाले जहाँ लंगर चला हुआ है पटियाले की तरफ से सरदार जस्सा सिंह जी, संधू जी यहाँ पर आए हैं। गरीबों को जो ज़रूरत है, जैसे बुंदेलखंड से हमारे बड़े किसान गरीब थे वो यहाँ जमे हुए हैं, उनको उन्होंने जूते भी बांटे गए हैं। कहीं जूता है, कहीं गरम की मशीन है, कहीं कंबल है, कहीं लंगर का। तो आज सरकार हैरान हो चुकी है। सरकार के पास ये इनपुट था, आईबी की और उनकी अपनी सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट थी, इस किसान के इस धरने को, इस आंदोलन को लंबा खींच दिया जाए तो ये किसान बिखर जाएगा। लेकिन उनकी ये सारी रिपोर्ट धराशायी हो गई। उन्होंने क्या किसानों के खिलाफ क्या क्या आरोप नहीं लगाए। जब हमारे पंजाब के किसान भाई इकट्ठे होकर के आए तो उन्होंने कहा कि तो पंजाब कहा है, ये तो खालिस्तान है। फिर हरियाणा से चढ़ के आए तो कहने लगे हरियाणा और पंजाब का है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल और जब सारे स्टेट चारों तरफ से जब किसानों का जमावड़ा खड़ा हो गया तो तमाम जितने प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए गए थे वो आरोप सरकार के निराधार साबित हुए। बल्कि ये साबित जरूर हुआ कि उन्होंने आरएसएस जैसे संगठन के कार्यकर्ताओं को, जिस समय हमारे संधू बॉर्डर पर 15 दिन पहले जब किसान एकता के नारे लगा रहे थे, उस समय 2 आदमी वहाँ से पकड़े गए, खालिस्तान के नारे लगाते हुए पकड़े गए। जब उनकी ठुकाई और पिटाई की गई तो उन्होंने कहा हम तो आरएसएस के। इस प्रकार की जलील हरकत सरकार के आदमियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन किसान आज 44वां दिन है, इतने शांति के साथ हिंदुस्तान में जो आज किसान का आंदोलन चल रहा है, कभी इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा और ना था।
हमें उकसाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन किसान ने सोच बना ली है। हमारा निशाना एक है, तीनों काले कानून वापस कराने हैं, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। उससे पीछे हमारा कोई मिशन नहीं है, एक ही मिशन है। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले, बहुत पहले जब तो लोग ये कह रहे थे राकेश टिकैत क्या बात कह रहे, राकेश टिकैत ने तो 15 दिन पहले कह दिया था कि 26 जनवरी को हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। और एक नारा है आज हमारे किसान नेताओं का, जितने भी हमारे 40 संगठन वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं तो किसान भी अपने घर को वापस नहीं, ये नारा है। और ये निश्चय है कि 26 जनवरी के अलावा यदि 15 अगस्त तक भी चलेगा तो भी यहाँ पर नादानी की कमी है, न किसानों के जज्बात में कमी आएगी, न कहीं लंगर में कमी आएगी, किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। सरकार की छूट है, जो भी परीक्षा सरकार लेने चाहे, हमारे धैर्य की परीक्षा भी लेनी चाहे तो भी देने को तैयार है। लेकिन किसान का एक लक्ष्य है आज कि हमें हर हालत में इन काले कानूनों को वापस कराना है, एमएसपी का हमें कानूनी दर्जा प्राप्त करना है। चलो, आज ये जो हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा है, जैसा कि सबको मालूम है कि 40 दिन हो गए हिंदुस्तान का किसान कृषि के तीनों किसान विरोधी जो कानून, इन कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। हम ये गूंगी और बहरी नरेंद्र मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि जब अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर थी, ये बहादुर पंजाब का किसान भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नेतृत्व में 1905 से लेकर 1907 तक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीनों काले कानून के खिलाफ पंजाब के बहादुर किसान लड़े हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि इस देश की खेत को, हमारी रोटी को, हमारे तिरंगा को, हमारी आज़ादी को बचाने के लिए अडानी अंबानी के दबाव में जो तीनों कृषि विरोधी कानून बनाए गए हैं, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। हम लोगों ने यह तय किया कि 8-9 दौर की जो वार्ताएं हो गई हैं, सरकार जानबूझ करके लेट लतीफ़ी कर रही है। किसान संगठनों ने आगामी जो अपना कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, 13 तारीख को हमारे देश के सिखों का जो सबसे बड़ा त्यौहार है लोहड़ी, उस दिन हिंदुस्तान के आम किसान तीनों कृषि विरोधी कानून की प्रतियां जलाएंगे। और 18 तारीख को इस देश की जो आधी आबादी है महिलाओं ने तय किया कि 18 को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 23 जनवरी का दिन जो है, हम लोगों को मालूम है कि इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, शहीद आजम भगत सिंह के जो साथी है सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनने नारा दिया था हिंदुस्तान की जनता को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। 23 जनवरी को हिंदुस्तान का किसान ये संकल्प लेगा कि इस देश के खेत, हमारी भारत माँ, हमारे तिरंगा, हमारे आन बान को बचाने के लिए 23 तारीख को हिंदुस्तान का किसान संकल्प लेगा। अडानी अंबानी के पक्ष में जो काले कानून बनाए गए, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। किसानों से हम अपील करेंगे, अपनी माँ को, अपनी धरती को, अपने देश को बचाने के लिए ये आंदोलन कुर्बानी मांगता है। शहादत देने के लिए हमारे देश का किसान तैयार हो जाए। 26 जनवरी को हिंदुस्तान का जो संविधान बना था, पूरे देश में जो संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के अंदर अपना इस आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालेगा। जो किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, देश के हर कोने कोने में, हर जिलों में ट्रैक्टर रैलियां निकाली जाएंगी। गांव-गांव के अंदर संविधान दिवस के दिन हम किसान संकल्प लेंगे कि हमारी जो आज़ादी है, आज़ादी की जो दूसरी जंग है, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन में जब तक किला फतेह नहीं होगा, जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे, 26 तारीख को आंदोलन का नया फैसला हम लोग करेंगे। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसे कंपनियों के सामने इस देश के किसानों को, हमारी भारत माँ को, हमारे तिरंगे को, हमारी ज़मीन को, हमारी रोटी को गिरवी रखना सरकार बंद करे। हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहते इस चैनल के माध्यम से कि आज़ादी की दूसरी जंग है, इस जंग में किसान संगठन आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, बचा लो अपनी माँ को, बचा लो अपनी आज़ादी को, बचा लो भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों का, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया है। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसानों की वापसी जब होगी, जब बिल वापस होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन। बोलो। मैं मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे 6 तारीख से रुका हूँ। डेली हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो किसान हैं वो काफ़ी संख्या में उनकी संख्या बढ़ती हुई चली आ रही है
मगर दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया हमारे किसानों की सही बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा। कुछ चैनल से जो है हमारे, वो हमारे किसानों की बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ बात एक है कि हमारी जो मोदी सरकार है वो अब किसानों के आंदोलन से इतनी घबरा गई है कि अभी कल शाम को 7 बजे हमारे इसी पलवल कैंप में कोई 3 कट्टा रख गया। वो एक ऑटो वाले को दिख गया, उसने कंप्लेंट की। जब वो पुलिस वाले आए, उनकी भी एक कुछ मिली भगत है कि जिस आंदोलन को हम, इस साजिश को, किसानों की इस आंदोलन को हम नाकाम करें, पर हम उसकी नाकामियों को ठुकराते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की जो हरकतें जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त जांच की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। और हम प्रशासन से और एक निवेदन करना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी, हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के चारों तरफ पूरी बॉर्डर किसानों ने आज की तारीख में घेर कर रखी हैं। आप उनकी बात सुनो। आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, आप उसको ठीक करवाइए। आपको दूर अमेरिका का दिख रहा है। हमारे देश का किसान इतनी सर्दी में विषम परिस्थितियों में रोड पर पड़ा हुआ है, उसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। अमित शाह जी बंगाल में जाकर किसानों की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए। आपकी बॉर्डर पे, आपके राज्य, अब दिल्ली के किनारे पे किसान लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गए, 60 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए हैं। बड़े दुख के साथ हमको ये बात कहना पड़ रही है केंद्र सरकार से कि शीघ्र से शीघ्र जैसा भी हो हमारे किसान भाइयों की इन 3 काले कानूनों को समाप्त किया जाए और MSP की जो गारंटी है वो हमारे किसान भाइयों को दी जाए। जय हिंद। नौजवान वीरों को बहुत घट किया जाता है क्योंकि हुण मोदी सरकार को असीं ये दसना है कि जे ये धरती गांधी वर्गे गदारां नूं जन्म दे सकदी है तो इत्थे भगत सिंह वर्गे सूरमे भी पैदा हुंदे आ। डट के खड़ गए हाँ असी जानवारन नूं, जितण लई आए हार नहीं सी हारन नूं। डट के खड़ गए हाँ असी जानवारन नूं, जितण लई आए हार नहीं सी हारन नूं। काले कानूनां नूं, खेती मारू कानूनां नूं असीं रद्द करवावांगे, असीं रद्द करवावांगे। आ होश विच सरकार असीं हक लैके जावांगे, आ होश विच सरकार असीं हक लैके जावांगे। चंगे लगदे ने जट वाहे लैंदा ए तेरे अच्छे दिन चलदे ने। कुछ पत्तियां वाले लारे क्यों तेनू चंगे लगदे ने जट वाहे लैंदा ए तेरे अच्छे दिन चलदे ने। तेरी लुट खसूटां नूं काली करतूतां नूं हुण ठल असीं पावांगे, हुण ठल असीं पावांगे। आ होश विच सरकार असीं हक लैके जावांगे, आ होश विच सरकार असीं हक लैके जावांगे। पंजाबियां ने कदे पिठ विखाई ना, तू पर छापे वंडे पंजाब दी वारी आई ना। इतिहास गवाह पंजाबियां ने कदे पिठ विखाई ना, तू पर छापे वंडे पंजाब दी वारी आई ना। असी मंगते बनना नहीं हथ
हक लेके जावांगे। शुरू होए ने इम्तिहानां दे, हरिंदर मनोली वाला खड़ूगा नाल किसानां दे। दौर हले तां शुरू होए ने इम्तिहानां दे, हरिंदर मनोली वाला खड़ूगा नाल किसानां दे। शर्मिंदा हो जाना, तीर निशाने लावांगे, निशाने लावांगे। आहोश विच सरकार असी हक लेके जावांगे, आहोश विच सरकार असी हक लेके जावांगे। खुले स्कूल बंद, मोदी तेरी मोदी साला मर गया, रंडी कर गया, मोदी साला मर गया, रंडी कर गया। 1 रुपये का शैम्पू, मोदी साला टेम्पू, 1 रुपये का शैम्पू, मोदी साला टेम्पू, 1 रुपये का शैम्पू, मोदी साला टेम्पू।